Good afternoon, BCom second year. Welcome back to the class of Marketing Management. विपणन प्रबंधन. विपणन प्रबंधन. सो पिछली वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्कस कर चुके थे अबाउट द नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग. ओके, तो नेचर पढ़ लिया था अपन ने, स्कोप पढ़ लिया था एंड द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग. ठीक है, आज अपना टॉपिक है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. ओके, सो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स है और अभी जो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, वो उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट, किन किन कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंसेस हैं वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, सो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं. ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है यहां पर क्या है कि सिंपल वर्ड में हम अगर दोनों का डिफरेंस समझना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि अपने हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, इट इज कन्वर्टिंग देम इनटू द product and that product is sold to the customer and in return the profit is earned by the producer. Okay, so it starts with the producer and ends with the profit of the producer. Okay, so this is the traditional concept of marketing. Okay, it starts with the producer and ends with the profit of the producer. Okay, so this is a simple selling concept. Okay, now when we talk about जब अपन modern marketing concept की बात करते हैं, so it starts with the needs of consumers. It starts with the needs of the consumer. Okay, that is identified by the producers and these needs are converted into a product or a service by the producer that reaches the consumer and consumer satisfaction So this is typically the flow chart of the modern marketing concept. So this is the difference. Traditional marketing concept के अंदर क्या हो रहा है कि it starts with the producer, needs of the producer and ends with the profit of the producer. While the modern marketing concept
कहाँ से शुरू हो रहा है, नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द कंज्यूमर एंड एंडिंग विद द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, कंज्यूमर को जब गुड्स और सर्विसेज बेच दी जाती है उसके बाद जो प्रोसीजर है, ठीक है, दैट इज द फॉलो अप। ठीक है, प्रॉफिट कब अर्न किया जाता है, व्हेन द कंज्यूमर्स आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लो चार्ट of the traditional marketing concept and the modern marketing concept। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस है, this is the feedback। ठीक है, ये क्या है, feedback process है, when the goods are consumed by the consumer, then it is identified whether the needs of the consumers are fulfilled or not। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए चल सकता है, while for earning the long term profit through customer satisfaction is done by the modern marketing concept। okay, so this is the difference between the traditional marketing concept and the modern marketing concept। okay, now अब अपन पढ़ेंगे कि इनके बीच में ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। कुछ कॉन्सेप्ट से बना है ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? Exchange concept। Exchange concept is the concept between the buyer and the seller। ठीक है, मतलब कि जो सेंट्रल आइडिया है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, ठीक है, जो केंद्रीय उद्देश्य है वो है कि माल बेचकर और सामने वाले व्यक्ति से किसी भी तरह से पैसा लेना। ठीक है, माल बेचना और पैसा लेना। ठीक है, selling the goods and services and earning the money। okay, this is known as the exchange concept। okay, without having the knowledge of the needs or the desire of the consumer, ग्राहक की इच्छा, उसकी जो डिजायर है उसको जाने बिना बस किसी भी तरह से एक्सचेंज कॉन्सेप्ट क्या कहता है, माल बेचो और पैसा कमाओ। okay, so this is known as the exchange concept। second one is the production concept। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, उत्पादन नियम, वो क्या कहता है कि consumers will prefer products that are widely available and inexpensive। The production concept aims at achieving profit through high production efficiency and low cost and wide scale distribution। Production concept जो है वो बात करता है availability of product। ठीक है, वो ये कहता है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल होगा मार्केट में, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसकी सेल होगी। ठीक है, और अवेलेबिलिटी, वाइड स्केल अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उसकी बड़े पैमाने पर उपस्थिति कैसे पॉसिबल हो पाएगी, व्हेन यू विल हैव द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देयर हर समय लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज पॉसिबल। ओके, तो प्रोडक्ट जो है वो हर तरफ, हर मार्केट में अवेलेबल हो, हर मार्केट में अवेलेबल होगा तो उसकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ओके, सो दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि किसी भी तरह से जो प्रोडक्शन लेवल है उसको निरंतर बढ़ाया जा सके, और निरंतर बढ़ाने से क्या होगा कि उसकी कॉस्ट पर यूनिट, जैसे कि हमको पता ही है, जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है उसकी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज। अब वो प्रोडक्शन चाहे किसी भी तरह का हो,
ठीक है, दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. ओके, दैट इज द प्रोडक्शन इज दैट डिसीजन इज टेकन बाय द प्रोड्यूसर. ठीक है, जो प्रोड्यूसर ने फैसला किया है उन गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाए, उनको उनका उत्पादन किया जाए, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में फैले, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में फैलेंगे तो उनकी सेल ऑटोमेटिकली द कंज्यूमर्स विल ऑटोमेटिकली परचेज दैट प्रोडक्ट. ओके, जबकि ऐसा नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज somewhat similar to the little bit of art of the modern marketing concept. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, उससे परचेज नहीं होगा. इट इज द प्रोडक्ट क्वालिटी. ठीक है, जो गुड्स की क्वालिटी है वो सुनिश्चित करती है कि माल कितना बिकेगा बाजार में. ठीक है, so it is the quality of the product that decided how much sale the product will have in the market. Okay, so third is the product concept, that calls believes that consumer will prefer those products that are high in quality, performance and are innovative. This marketing comes from matching of products with the market superior products and improving them. उसके अंदर क्या, जो मैंने आपको बताया, वो यही कहता है कॉन्सेप्ट कि वही प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल रहेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसकी एफिशिएंसी होगी अच्छी होगी, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को मार्केट के हिसाब से मैच किया जाता है. ठीक है, दैट इज द मार्केट सेगमेंटेशन. दैट इज नोन एज द मार्केट सेगमेंटेशन. ठीक है, बाजारीकरण जिसको बोलते हैं हम, सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट. तो उसके अंदर क्या है कि हर मार्केट के लिए एक पर्टिकुलर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डिसाइड कर लो, तो वो प्रोडक्ट उस मार्केट में ऑटोमेटिकली सेल होने लग जाएगा. ओके, ऑल्दो इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, बट इट इज इंक्लूडेड इन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज द fourth is the selling concept. अब ये जो है वो है प्योर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट. ठीक है, दिस इज अ प्योर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट. वो क्या कहता है कि लेकिन इसमें मार्केटिंग का प्रयोग किया जा रहा है. ठीक है, इसमें विपणन का प्रयोग किया जा रहा है. ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और लेवल ऑफ प्रोडक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, फर्क पड़ता है कि उसे किस तरह से बेचा जा रहा है. ठीक है, मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ सेलिंग एंड प्रमोशन टेक्निक्स यू आर यूजिंग टू पुश योर प्रोडक्ट इन द मार्केट. ठीक है, मतलब कि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपका बेचना चाहते हो तो आपको इंटेंसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा. ठीक है, इंटेंसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक्स से तात्पर्य है कि जितनी भी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स है, चाहे प्रोडक्ट किसी भी क्वालिटी का हो, किसी भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बस आप उसको प्रमोट करते रहे अच्छे से, सेल्स प्रमोशन उसका करता रहे, तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट में सेल हो जाएगा. ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट मार्केटर शुड फोकस ऑन सेलिंग व्हाट इज मेड. जो भी बन रहा है, जैसा भी बन रहा है, बस उसे बेचना है. ठीक है, रादर देन फोकसिंग ऑन मेकिंग द गुड्स, मेकिंग द प्रोडक्ट दैट कैन बी सोल्ड. ठीक है, so it focuses on selling what is made rather than making what is to be sold. ठीक है, so these are the four traditional concept of marketing. Okay, अब इसके बाद है अपना मॉडर्न कॉन्सेप्ट. मॉडर्न कॉन्सेप्ट के फीचर्स अपन इसी से बता सकते हैं. इट स्टार्ट्स विद द नीड्स. कंज्यूमर इज द सेंट्रल व्यू पॉइंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज. जो कंज्यूमर है उसकी नीड्स आइडेंटिफाई की
रहती है और खत्म नहीं होता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे। यहाँ पर डुअल ऑब्जेक्टिव होता है, द प्रॉफिट इज अचीव थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सो प्रॉफिट इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो प्रॉफिट इज अचीव थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात करते हैं, दैट इज अचीव थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स ऑफ द कंज्यूमर एंड कन्वर्टिंग इनटू अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। टारगेट मार्केटिंग क्या करते हैं कि वी हैव टू, द मार्केट इज वेरी बिग, ठीक है, वी हैव टू सेगमेंट द मार्केट इनटू सेवरल होमोजेनियस मार्केट। होमोजेनियस मार्केट होते हैं जिनके अंदर कस्टमर्स की नीड्स डिजायर जो होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं होमोजेनियस मार्केट्स, वेयर द नीड्स एंड डिजायर ऑफ द कंज्यूमर्स आर वेरी सिमिलर, उनको अपन बोलते हैं होमोजेनियस मार्केट, ठीक है। तो उस होमोजेनियस मार्केट सेगमेंट्स में से एक टारगेट मार्केट हमको कंसिडर करना होता है, ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट cater to the needs of different kinds of people in different market, ठीक है। तो हमको टारगेट मार्केट हमारा आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।